السلام علیکم دوستوں، احساس کے دریچوں پر ناول کی دوسری ایپیسوڈ۔ لیکن پھر تمام پلاننگز دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ حادثہ رونما ہو گیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ اچانک کیا ہو گیا۔ ارسل نے انہیں رات اسٹڈی روم میں کام میں مصروف دیکھا تھا، لیکن صبح جب بیگم منصور جب وہاں گئیں تو وہ کرسی پر بیٹھے ٹیبل پر بازو اور سر رکھے سو رہے تھے۔ منصور صاحب، انہوں نے آواز دے کر جگانا چاہا، لیکن ان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو سانے پکڑ کر ہلایا۔ منصور صاحب، لیکن وہ جواب دینے کی بجائے ایک طرف کو لڑھک گئے۔ ان کا جسم بے جان پڑا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ رات 3 بجے کے قریب انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا، جو ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ جس نے بھی سنا حیران رہ گیا۔ لوگوں کا ایک بھیڑ رواں تھا جو بہا چلا آتا تھا۔ ارسل صبر و تحمل کا پہاڑ بنا ایک طرف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بیگم منصور ساکت وجود لیے اپنے شوہر کے کفن میں لپیٹے بے جان وجود کو ایک ٹک تکے جا رہی تھی۔ نہ کوئی بین، نہ کوئی چیخ و پکار، بس لوگ ہی تھے، لوگ جو مختلف چیمنگویاں کر رہے تھے۔ تمام اسٹاف کے ساتھ وہ بھی وہاں آئی تھی، لیکن وہاں موجود ایک ہستی کو دیکھ کر بنا کسی کو کچھ بتائے خاموشی سے نکل آئی۔ بس بیٹا، آپ میرے لیے دعا کیا کرو کہ خدا مجھے پچھتاووں کے بھنور سے نکال دے۔ کہوں گا وقت آنے پر اپنے تمام جرموں کا اقرار کروں گا، لیکن ابھی تو مجھے ان زیادتیوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ان کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ انکل، آپ تو تمام بوجھ اپنے سینے پر ہی لے گئے۔ آخر کچھ تو کہا ہوتا۔ وہ کون سے جرم تھے، وہ کون سی زیادتیاں تھیں جن کا کفارہ آپ نے ادا کرنا تھا، جو مجھ پر ڈھیروں احسانات کر کے یہ بوجھ اتارنا چاہتے تھے؟ کہیں اس کے پیچھے وہ ہستی ہی تو کارگر نہیں تھی؟ اس کے آگے وہ کچھ بھی نہ سوچ سکی۔ سڑک کے کنارے دھیرے دھیرے چلتے آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ وہ اتنی بے خبر تھی کہ آنسو صاف کرنا بھی بھول گئی تھی۔ چلتے چلتے جب وہ بالکل نڈھال ہو گئی تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر دور خلاؤں میں گھورنے لگی۔ ایکسکیوز می، ایک مانوس سی آواز کانوں سے ٹکرائی تو اس نے خالی خالی نظروں سے سامنے کھڑے رئیس احمد کی طرف دیکھا۔ مس تنوینہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بڑی دیر سے آپ کو یوں ہی بے مقصد چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے کھوئے ہوئے انداز سے مجھے خطرہ تھا کہ کہیں کوئی حادثہ ہی پیش نہ ہو جائے۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کے لہجے میں واضح نمی تھی۔ آپ کی دعاؤں اور کوششوں سے بالکل ٹھیک۔ آپ میری شادی میں تشریف نہیں لائیں، جبکہ میں نے بہت انتظار کیا تھا۔ بس یوں ہی۔ وہ چاہنے کے باوجود رسماً بھی نہ مسکرا سکی۔ کیسی ہے آپ کی مسز؟ بہت اچھی، بہت مخلص، اور اب تو ماشاء اللہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو، اس نے اس کا چہرہ کھوجتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ تنوینہ جی، میں واقعی اپنی اس زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں، کیونکہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ جو چیزیں دسترس سے باہر ہوں اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ میں واقعی بیوقوف تھا۔ اس کی بات پر وہ خاموش رہی۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے۔ شاید اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بات کرے، یا پھر جو کہنا چاہتا تھا کہہ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ کئی بار اس نے لب کھولے اور بھیجے تھے۔ رئیس صاحب، آپ پوچھیں گے نہیں کہ میں کہاں سے آ رہی ہوں اور مجھے کیا ہوا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں تنوینہ جی، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں آپ اسے بے تکلفی کے زمرے میں نہ لے آئیں، اس لیے ہمت نہیں ہو رہی۔ رئیس صاحب، اس کی آواز روندھ گئی۔ رئیس صاحب، منصور صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ نہیں رہے؟ وہ چلے گئے؟ اور پھر اس کا جواب
اس کا ضبط جواب دے گیا اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور لرزتے وجود کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی ایک دم ہی بے مقصد ہو گئی تھی۔ تمام پلاننگ، سارے اسائنمنٹ دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ وہی دفتر جہاں ہر وقت کام ہوتا تھا، اب وہاں سب لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ خاموش تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اگر کسی نے کچھ کہا تو کہیں پھر کوئی حادثہ رونما نہ ہو جائے۔ ایسے میں تانیہ نے اسے سمجھانا اپنا فرض سمجھا۔ وینا، پھر گئی تھی تم؟ اس نے پوچھا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، پھر چند لمحوں بعد مختصراً جواب دیا، نہیں، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دن بھی تم فوراً ہی کسی کو بتائے بغیر، کسی سے ملے بنا ہی نکل آئی تھی۔ جانتی ہو، ارسل صاحب کی نگاہیں ہر آن تمہیں ڈھونڈ رہی تھیں اور ان آنکھوں میں واضح تحریر تھی کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ پلیز تانیہ، وہ اپنی کرسی پر سیدھی ہو بیٹھی، مجھے ایسے خواب مت دکھاؤ جن کی کوئی تعبیر نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رئیس احمد کی دی گئی دعا بھی میرے لیے بد دعا بن جائے۔ اس کے جواب پر تانیہ خاموش رہ گئی کہ بہرحال حقیقت حال سے بھی وہ واقف نہ تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ تمام منصوبے بکھرتے جا رہے تھے۔ دفتر تو سب آتے سوائے ارسل کے، لیکن کام کروانے والا کوئی نہ تھا، تو ورکرز بھی لا تعلق ہو گئے تھے۔ ارسل کے بعد تمام ذمہ داری تنوینہ پر عائد ہوتی تھی، لیکن اس کا تو جیسے ہر کام سے جی اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھی رہتی۔ تانیہ اور تنویر نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ اپ سیٹ ماحول کو کنٹرول میں کر کے ورکرز سے کام لیا جائے، اور اس کوشش میں سرمد اور فہد بھی اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ نائمہ اور راحلہ بھی ان کی مدد میں پیش تھی، لیکن وہ اس کوشش میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ تانیہ کا صبر جواب دے گیا تو وہ چلا اٹھی، تنوینہ، آخر کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ ارسل صاحب بھی نہیں آ رہے، تم بھی کسی کام میں دلچسپی نہیں لے رہی، تمام سیٹ ہو گیا ہے، ہماری 2 برسوں کی محنت اکارت ہو رہی ہے۔ جس کمپنی کو ہم نے اپنی نیندیں حرام کر کے یہاں تک لائے، دن رات کی محنتوں سے اونچا مقام دیا ہے، اب وہ پستی کی طرف جا رہی ہے۔ میں کیا کروں تانیہ، میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ آخر کب تک؟ پتہ نہیں، وہ کہہ کر دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں چلی گئی اور وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پتہ ہے تانیہ، وہ آنکھیں موندے موندے مخاطب ہوئی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی ہوں۔ دنیا جہاں کا کرب اس کے لہجے میں تھا۔ شاید میری قسمت میں باپ کا پیار ہے ہی نہیں۔ آنکھوں سے بہتے آنسو دائیں بائیں لڑک گئے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے درد سے سینہ پھٹ جائے گا۔ بے آواز سسکی ہونٹوں تک آ کر دم توڑ گئی۔ وینا، پلیز سمجھا لو خود کو، تانیہ نے گھبرا کر کہا، کیونکہ اس کے اندرونی اذیت کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ تانیہ نے اسے گلے لگا لیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اسے رونے دیا تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ارسل صاحب، ہماری کمپنی کو دن بدن بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تنویر اس وقت اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہونے دو، وہ بھی صوفے کی پشت پر سر رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ سر پلیز ایسے تو نہ کہیں، ہم نے اس کمپنی کے لیے دن رات ایک کیے ہیں۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا۔ تنویر صاحب، یہاں جیتا جاگتا انسان منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے تو باقی چیزوں کی کیا حیثیت؟ وہ انتہائی دلبستہ انداز میں بولا۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن یہی قانون قدرت ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن ہم جانے والوں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ہم زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر مجبور ہیں سر۔ اپنا وقت آنے پر ہمیں بھی جانا ہے۔ تو پھر تنویر صاحب، یہ کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے تو پھر اتنا جنجال پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم یہ سب؟ آخر کس کے لیے، کس کی خاطر؟
वो जैसे अपना अख्तियार खो बैठा तो तनवीर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। शायद उसको संभलने का मौका देना चाहता था। सर, मैं आपकी अंदरूनी कैफियत और दिली जज्बात से वाकिफ़ हूँ। उधर मिस तनवीना है तो वो भी कुछ नहीं कर पा रही। उसे ज़रूरत भी क्या है कुछ करने की, उन्हें तो फरागत का मौका ही मिला है। अब जो चाहे मर्जी करें, अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो उसे क्या ज़रूरत है काम करने की। बैठे बिठाए तनख्वाह मिल जाएगी और क्या चाहिए। तनवीर, क्या इस दुनिया में मकसद सिर्फ पैसे का है? आपके सामने क्या नहीं किया पापा ने उस लड़की के लिए, लेकिन उसके नज़दीक इंसानी ज़िंदगी की कोई कद्र व अहमियत नहीं। कई दिनों का अंदर ही अंदर पकता हुआ लावा आखिरकार न चाहते हुए भी बह निकला था। वो बोलने पर आया तो बोलता ही चला गया कि मुखातिब को भी कुछ कहने का मौका न दिया। लेकिन जैसे ही वो खामोश हुआ, तनवीर बोले बिना न रह सका। नो सर, ये बात नहीं है। आपकी तरह वो भी बहुत अपसेट है। उन्होंने बहुत असर लिया है मंसूर साहब की वफ़ात का। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि मैं एक दफ़ा फिर यतीम हो गई हूँ। बस मिस्टर तनवीर, मुझे बिना बातों से मत बहलाएं। उसने हाथ खड़ा करके उससे आगे बोलने से रोक दिया। मैं इन गरीब और मुफलिस लोगों की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया हूँ। आपको मेरे सामने किसी की सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा तो वो लब भींच कर खामोश हो गया। कुछ ही देर के बाद बेगम मंसूर आ गई। उनके पीछे एक मुलाजिम चाय की ट्रॉली खींचता हुआ ला रहा था। अस्सलामु अलैकुम मैडम, वो उनके एहतराम में खड़ा हो गया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। घर में सब खैरियत? वो अफसरदा सी संजीदगी से पूछ रही थी। जी शुक्र है अल्लाह का। फिर मुलाजिम ने चाय सर्व की और चला गया तो वो गोया हुई। बेटा, आप ही उसे समझाएं। जिसका वक्त आ जाए उसे आखिरकार जाना ही होता है। जाने वालों का नैमुल बदल तो कोई नहीं होता, लेकिन हमें ज़िंदगी के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है कि अगर ये घर से बाहर निकलेगा तो दोबारा ज़िंदगी में दिलचस्पी लेगा और यकीनन उसका दिल भी बहल जाएगा। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं भी तो उनसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ। उसने झुकी नज़रों के साथ बेहद एहतराम से कहा। अपना और अपने पापा का तमाम बिजनेस अब उसे ही तो संभालना है। उनके तमाम मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाना अब उसी का फ़र्ज़ है, और अगर ऐसा ना हुआ तो यकीनन बिजनेस का बहुत नुकसान होगा। वो बहुत धीमे धीमे और समझाने वाले लहजे में बोल रही थी, और वो एक था कि सब बातों से बेनियाज बैठा था। अरसल साहब, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। छोड़ो यार, यहाँ तो हर एक को अपनी पड़ी है। उसने इंतहाई उकताए हुए और बदगुमानियों से भरपूर लहजे में कहा तो बेगम मंसूर के मुक़द्दस चेहरे पर साया सा लहरा गया। ओके सर, इजाज़त दें। थोड़ी देर बाद तनवीर ने कहा तो वो भी उसके साथ खड़ा हो गया। बेगम मंसूर को खुदा हाफिज़ कहकर वो दोनों बाहर आ गए। सर, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहूँगा ज़रूर कि इन बदगुमानियों को दिल से निकाल कर देखें। दुनिया बहुत खूबसूरत है, और ख़ास तौर पर आपके इर्द गिर्द बसने वाले लोग बहुत अच्छे और मुखलिस हैं, उसने कहा और तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ गेट को पार कर गया। मिस तनवीना, हम सब जानते हैं कि मंसूर साहब आपको बहुत चाहते थे। आपको बेटी बनाया था उन्होंने। वो वाकई बहुत सफ़ीक इंसान थे। उनके एहसानात का बोझ न सिर्फ आप पर बल्कि हम सब के कंधों पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम भी साबित कर दिखाएं कि हम कितने मुखलिस हैं। अरसल साहब इस अचानक हादसे से ज़हनी तौर पर इतने ऑफसेट हैं कि अभी उन्हें मज़ीद डिस्टर्ब करना ठीक नहीं। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि इस कंपनी को मज़ीद नुकसान से बचाएं। वो सब इस वक्त उसके कमरे में बैठे थे और तनवीर के साथ साथ सरमत और फ़हद भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे।
मैडम, आपको पता है इस माह का सबसे अहम मसला क्या है? सरमद ने कहा तो वो उसकी तरफ देखने लगी। वर्कर्स की तनख्वाहें, उसने चौंकाने वाले अंदाज में कहा। पिछले माह की तनख्वाहें भी अकाउंट्स में से अदा की गई थी, क्योंकि मंसूर साहब की वफ़ात के पेश नज़र दफ्तर बंद होने की वजह से काम नहीं हो सका। लेकिन अगर वर्कर्स को पेमेंट न की जाएगी तो वो यकीनन बहुत मुश्किल होगी। काम तो इस माह में भी बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन वर्कर्स तो आते ही रहे हैं, और अगर पिछले माह की तरह इस दफ़ा भी पेमेंट कम दी गई या ना दी गई तो सब बदगुमान हो जाएंगे। सरमद ने सारी तफसील उसके गोश गुजार की तो उसके चेहरे पर फ़िक्र की लकीरें उभर आई। उसका जहन तेज़ी से काम करने लगा, लेकिन कुछ समझ न आया, क्योंकि महीना ख़त्म होने में सिर्फ 10 दिन ही रह गए थे। लेकिन अब वो पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। तो फिर उसका क्या हल हो सकता है? उसने इंतहाई परेशानी से पूछा। उसका हल यही है कि हम अपनी अपनी जेब हल्की करें और जो कुछ दिन बाकी हैं उनमें दिन रात मेहनत करें, तनवीर ने मुस्कुरा कर कहा। और फिर वाकई ऐसा हुआ। दोबारा से असाइनमेंट तैयार किए गए, मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ मीटिंग्स की गई। दिन के साथ उनकी रातें भी ऑफिस में गुजरने लगीं, और फिर उनकी मेहनतों ने रंग दिखाया और वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम हालात पर काबू पाने में कामयाब हो गए। वर्कर्स की पेमेंट कुछ देर से ही सही, लेकिन उन्होंने मिल बांट कर अदा कर दी। तो सरमद ने सुकून का सांस लिया कि अकाउंट्स का शोबा उसके पास था। हालात कंट्रोल में आए तो सब ने शुक्र अदा किया। हस्ब साबिक काम होने लगा। जिन मीटिंग्स में पहले अरसल और मंसूर साहब जाया करते थे, अब तानिया, तनवीर और तनवीना उन्हें डील करते। अभी वो लोग अपनी कामयाबियों पर पूरी तरह मुतमईन भी नहीं हुए थे कि मंसूर साहब की फैक्ट्री का मैनेजर एक नया मसला लेकर आन पहुंचा। पिछले 2 माह से वर्कर्स की पेमेंट्स नहीं हुई थी, तो वो बागी हो चुके थे। हड़ताल तो उन्होंने पिछले महीने ही कर दी थी, लेकिन अब फैक्ट्री को आग लगाने की धमकियां दे रहे थे और कहते हैं कि मंसूर साहब की वफ़ात के ज़िम्मेदार हम नहीं, तो फिर हमारे बच्चे क्यों भूखे मरें। वो लोग तो यहाँ तक धमकियाँ दे रहे हैं कि वो मंसूर साहब की रिहाइश गाह पर हमला कर देंगे, और बहुत मुमकिन है कि वो ऐसा कर भी दें। उधर अरसर साहब से राब्ता नहीं हो रहा, फ़ोन करो तो जवाब मिलता है घर पर नहीं है। घर जाओ तो चौकीदार गेट से अंदर दाखिल नहीं होने देता कि उसे ऑर्डर नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के पास आया हूँ, क्योंकि मंसूर साहब बहुत तारीफ़ें किया करते थे आप सबकी। मैं बड़ी उम्मीद से यहाँ आया हूँ कि कंपनी की तरह आप फैक्ट्री के हालात भी कंट्रोल कर लें। मुझसे जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने फैक्ट्री की हिफाजत की, लेकिन अब सब कुछ मेरे अख्तियार से बाहर है। मैं बिल्कुल बेबस हो गया हूँ। ये हालात उन सबको एक दफ़ा फिर परेशान करने के लिए काफ़ी थे। तनवीना ने तनवीर, सरमद और फहद को फ़ौरन ही मैनेजर के साथ फैक्ट्री दौड़ाया कि वो हालात का मुआयना करके कोई पायदार लाया अमल तैयार करें। लेकिन वापसी पर उन्होंने जो हालात बयान किए वो उनकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी था। अब अरसल साहब से राब्ता किए बगैर कोई चारा नहीं है, फहद ने कहा तो सबकी नज़रें तनवीना की तरफ उठ गईं, जो कि किसी गहरी सोच में गर्क थी। उसने फैक्ट्री की तमाम जिम्मेदारी तनवीर के सुपुर्द की और उसकी मदद के लिए फहद और फरिया को साथ कर दिया, जबकि तनवीर बज़ था कि वो खुद उसके साथ चले, क्योंकि वो उसके बरवक्त मनसूबा बंदी का इस कदर कायल था कि हर मामले में उसे साथ घसीटता था। उसके इस तरह करने पर कभी कभी तानिया शरारत से कहती, दाल में कुछ काला है। यार, कैसी बातें करती हो? किसी की जहानत को सराहना और मेहनत व दियानतदारी की दाद देना कोई बुरी बात है क्या? मेरे दिल में तनवीना के लिए बेहद इज़्ज़त और एहतराम है, और वो वाकई एहतराम के काबिल है। बहरहाल तनवीर, तुम जो भी कहो, वीना को मैं बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। वो बहुत मजबूत किरदार की लड़की है, बहुत अना वाली, किसी ना किसी से दबने, किसी ना
किसी से न दबने वाली। अगर वो किसी से दबती है तो सिर्फ अरसल सर से, और वो भी उसकी मजबूरी है कि मातहती आड़े आ जाती है, वरना शायद उसको भी खरी खरी सुना दे। और तुम भी किसी खुशफहमी में मत रहना, वो तुम्हें हरगिज़ घास नहीं डालेगी। हाँ यार, तुम मेरा पीछा छोड़ो तो कोई दूसरी लड़की मुझे घास डालेगी ना, उसने शरारत से भरपूर लहजे में कहा। तनवीर, तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। तानिया अचानक बिल्ली की तरह झपटी तो उसने हंसते हुए उसकी नाजुक कलाई मजबूती से पकड़ ली। तानी, मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें अपने अलावा किसी और की सभी नज़र आती है? उसने इंतहाई संजीदगी से कहा, लेकिन उसकी आंखों में न जाने कैसे जज्बे हलकूरे ले रहे थे कि तानिया जैसी इंतहाई बोल्ड लड़की भी नजरें चुरा गई। तनवीर उसकी इस हरकत पर कहकहा लगाकर हंस दिया। चंद दिन भाग दौड़ करके बैंक से कर्ज लेकर फैक्ट्री के वर्कर्स की तनख्वाहें अदा की गईं। काम दोबारा शुरू किया गया। फहद की पुरजोश तकरीरों ने मज़दूरों में मेहनत और दयानतदारी का एक नया जज्बा फूंक दिया। दिन ब दिन फैक्ट्री के हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। दिन रात की मेहनत की थकन और कुछ मौसम की तब्दीली ने उसका घेराव कर लिया था। आज वो फ्लू और बुखार के बावजूद ऑफिस चली आई थी, लेकिन सर में शदीद दर्द और छींकों की वजह से उससे कोई काम नहीं हो पा रहा था। वो अब तक 4 डिस्प्रिन और 4 कप चाय पी चुकी थी। तनवीर, तानिया और सरमत फैक्ट्री गए थे। उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब देखकर फहद उसके पास चला आया। मैडम, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा ख्याल है आप घर चलकर आराम करें। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि मैंने आकर बड़ी गलती की। कोई काम नहीं हो रहा मुझसे। आज ड्राइवर भी छुट्टी पर है और वैगनों में धक्के खाने की मुझ में हिम्मत नहीं। उसने अपनी सुर्ख होती नाक बार बार रगड़ते हुए कहा। अगर माइंड न करे तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? उसने झिझकते हुए पूछा तो वो उसकी बात सुनकर फ़ौरन उठ गई। हाँ चलो ठीक है। और फिर वो फरिया और राहिला को हिदायत देती हुई फहद के साथ उसकी गाड़ी में आ बैठी। रास्ते में डॉक्टर से चेकअप करवा कर दवाई ली और घर चली आई। फहद, अंदर आओ ना। नो मैडम, थैंक यू। नो थैंक यू, पहली मर्तबा मेरे घर आए हो, चाय के बगैर नहीं जाने दूंगी। चलो आओ, उसने कहा और गाड़ी से निकल आई और वो गाड़ी लॉक करता उसके पीछे चला आया। हॉर्न की आवाज़ सुनकर नाइमा भागती हुई गेट तक आई थी, जिसकी वजह से उसका सांस फूला हुआ और रंगत सुर्ख हो रहा था। अरे आपा, आप इतनी जल्दी? तबीयत तो ठीक है आपकी? आराम नेमी, आराम से। क्या हो गया है? आओ फहद, इससे मिलो, ये मेरी प्यारी सी बहन नाइमा, और नेमी, ये मेरे कॉलीग हैं फहद। उसने तारुफ कराया तो नाइमा एक अजनबी को सामने देखकर नर्वस हो गई। उससे पहले इस घर में कभी कोई गैर मर्द नहीं आया था। जैन के दोस्त अक्सर आते थे, लेकिन बावजूद बड़ी बहन के जैन ने उसे सख्ती से मना कर रखा था कि वो उनके सामने हरगिज़ नहीं आएगी, और न ही अम्मा को ये बात पसंद थी। लेकिन आज आपा एक अजनबी को घर ले आई थी। अम्मा कहाँ हैं? उसने चलते चलते पूछा। वो सामने वाले घर में जिनकी बेटी की मंगनी हुई है मुबारकबाद देने गई हैं। आने वाली होंगी। ठीक है, तुम फहद को ड्राइंग रूम में बैठाओ और चाय पिलाओ, और फहद तुम अम्मा से मिल कर जाना। मैं अब आराम करूँगी। आपा की बात पर उसे हैरत तो हुई, लेकिन खामोश रही। क्या करती हैं आप? वो चाय लेकर आई तो उसने पूछा। कुछ नहीं, बस घर में रहती हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। क्यों पढ़ती नहीं है? बीए के बाद फारिग हूँ। फहद न जाने क्यों उसका इंटरव्यू लेने लगा। आगे एडमिशन नहीं लिया? जी नहीं, इतना ही काफ़ी है। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा घरदारी का शौक़ है। ओ आई सी, फिर तो आप काफ़ी सुघड़ हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा तो खामोश रही कि उसकी निगाहें उसे नर्वस कर रही थी। इसी लम्हा डोरबेल हुई। शायद अम्मा आ गई, वो कहती तेजी से निकल गई।
थोड़ी देर बाद अम्मा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसने उठकर सलाम किया और उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर कर बैठने को कहा। नाइमा ने शायद सारी तफसीर उन्हें बता दी थी। वो थोड़ी देर रस्मन सी गुफ्तगू के बाद उठ गया था कि उसे जल्द अज जल्द दोबारा ऑफिस पहुंचना था। उसकी तबीयत संभलने की बजाय ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सभी बारी बारी उसकी इयादत के लिए आए थे। फहद तो तकरीबन रोज़ाना ही आता था। तकरीबन एक हफ्ता बुखार के बाद उसकी तबीयत संभली थी। खुद को कदरे बेहतर महसूस करते हुए वो अम्मा के मना करने के बावजूद ऑफिस चली आई। सब ने बड़ी खुश दिली से उसका इस्तकबाल किया। शुक्र है वीना तुम आई हो, वरना मैं अकेली पागल ही हो गई थी काम कर कर के, तानिया ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। शाम को वो जल्दी ही उठ गई थी। घर पहुंची तो अम्मा हस्बे मामूल बरआमदे में बिछे तख्त पर बैठी सब्जी बना रही थी। वो उनके करीब ही रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसने चंद लम्हों में ही घर में फैली खामोशी को महसूस कर लिया। अम्मा मामूल से ज़्यादा ही चुप थीं। क्या बात है अम्मा, खैरियत? उसके पूछने पर अम्मा ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गईं। आज फहद के घर वाले आए थे, अम्मा ने गहरी संजीदगी से बताया तो वो चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। क्यों? हैरत उसके लहजे में नुमायां थी। नाइमा के रिश्ते के लिए, अम्मा ने तंज और गुस्से के मिले जुले तासिरात के साथ बताया। क्या वाकई? उसकी खुशी दीदनी थी, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ शिकवा के निगाहों से देखा। क्यों अम्मा, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? फहद बहुत अच्छा लड़का है और यकीन न करे मैं अपनी बहन के लिए ऐसा ही लड़का चाहती थी। वो उनके पास आ बैठी तो अम्मा रोने लगी। अम्मा क्या हुआ है? वो परेशान वो उठी। और तू क्या करेगी? क्या सारी उम्र ऐसे ही रहेगी? मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने देगी? नाइमा पूरे 7 साल छोटी है तुझसे और अब इतनी हो गई कि उसके रिश्ते आने लगे हैं। दुनिया वाले तुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं तो माँ हूँ तेरी, और क्या जवाब दूंगी अपनी बहन को? क्या सोचेगी वो कि अपनी बेटी बेहाली और तेरी कमाइयाँ खा रही हूँ? बस तनवीना, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। मैं इन लोगों को यही जवाब दूंगी कि मैंने पहले बड़ी का करना है फिर छोटी का। अम्मा की बात का मतलब समझकर वो एकदम चीख उठी। अम्मा खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। फहद मेरी बहुत इज्जत करता है, बहुत एहतराम करता है। उसकी नज़रों में मेरे लिए बिल्कुल ऐसे जैसे जैन की आंखों में, जिस तरह जैन मेरी इज्जत करता है। आप घर आई नेमत को न ठुकराएं। नाइमा के लिए उससे बेहतर रिश्ता और कहीं नहीं मिल सकता। उसकी ये बात सुनकर पर्दे की आड़ में खड़ी नाइमा के दिल पर नरम फुवार बरस गई। वो जो सुबह से एक बोझ दिल पर महसूस कर रही थी कदरे कम हो गया। और उधर अम्मा उसकी बात सुनकर कड़े तेवरों से उसे देखने लगी तो वो नजरें चुरा गई। अम्मा आप फिक्र क्यों करती हैं? वक्त आने पर मैं भी शादी कर लूँगी, उसने नर्म लहजे में कहा। कब आएगा वो वक्त? अम्मा चीख कर बोली। मालूम नहीं, लेकिन आप फहद के वालिदैन को हाँ कर दें। वो जल्द ही शादी का कह रहे थे, तो क्या हर्ज है? नहीं तनवीना, तेरे से पहले मैं उसकी रुखसती नहीं करूँगी, अम्मा ने अटल लहजे में कहा तो वो सोचने लगी। ठीक है, मैं फहद से बात करूँगी कि वो कब तक इंतज़ार कर सकता है। वो ये कहकर वहाँ से उठ गई तो नाइमा तेज़ तेज़ कदम उठाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नैमी, उसकी आवाज़ ने कदम जकड़ लिए। करीब पहुंचकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका चेहरा उस तरफ करके पूछा, नैमी तुम खुश हो इस रिश्ते पर? उसके सवाल पर उसके चेहरे पर गुलाबियाँ बिखर गईं। उसे अपनी ये शर्मीली सी बहन बेहद अजीज़ थी। उसे इस तरह की सरमाई कोमल और नाजुक जज्बात वाली लड़कियां बहुत पसंद थी। एक दौर था कि वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन हालात की सख्ती ने उसे भी सख्त कर दिया था। लेकिन उसका दिल तो नर्म था, जहां आज भी उमंगें और ख्वाहिशें जन्म लेती थी। बोलो भाई, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। वो उसके चेहरे पर फैलते रंगों में खो सी गई थी।
वो आपा आप, उसने झिझकते झिझकते कह दिया। मेरी गुड़िया, उसने मोहब्बत से उसने अपने साथ लगा लिया। तुम मेरे लिए परेशान मत हो, सिर्फ अपने लिए सोचो। आपा मैं खुदगर्ज तो नहीं हूँ। उसकी आंखों में नमी उतर आई। आपा आप उन लोगों से कह दें कि वो इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना नहीं, उसने कहा और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भाग गई। फ़हद बआसानी अभी सिर्फ मंगनी करने पर रजामंद हो गया था। तानिया और तनवीर भी अपनी अपनी शादी की भरपूर तैयारियों में मसरूफ़ थे। सरमत के यहाँ भी बेटा हो गया था, लेकिन जिसकी खुशी में उसने छोटी सी पार्टी की थी। राहिला भी शादीशुदा थी और फरिया एंगेज्ड थी और बहुत जल्द पियादे सुधारने वाली थी। सब लोग अपनी अपनी दुनिया की खुशियों में मगन व मसरूर थे। एक बस वो थी कि जिसके मन का सहरा अभी तक किसी के प्यार के चंद बूंदों के लिए प्यासा था। बिना सोचे बिना समझे न जाने वो किन राहों की मुसाफिर हो गई थी। लाशऊरी तौर पर किस मंजिल की मतलासी थी वो खुद भी नहीं जानती थी। अरसल ने पूरे 3 माह बाद ऑफिस में कदम रखा तो हॉल कमरे में मौजूद तमाम वर्कर्स को अपने अपने काम में मसरूफ़ पाया। उसे देखते ही सब एहतरामन खड़े हो गए। बारी बारी सब ने उसकी खैरियत दरियाफ्त की और इजहार ताज़ियत किया। वो सबका शुक्रिया अदा करता आगे बढ़ गया। अगले कमरे में भी सब मसरूफ़ थे। सबसे पहले फरिया की नज़र उस पर पड़ी। वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। राहिला ने उससे इस तरह उठते देखा तो पहले उसकी तरफ, फिर उसकी नज़रों की ताकीब में देखा तो वो भी संभल कर खड़ी हो गई। बाकियों ने भी उसकी पैरवी की, लेकिन वो वहाँ रुका नहीं। सर के इशारे से उनके सलाम का जवाब देता आगे बढ़ गया। ग्लास डोर से दूसरे कमरे में एक नज़र डाली, जहाँ सामने ही तनवीना अपने काम में बुरी तरह मगन थी और तानिया की टेबल का थोड़ा सा कोना नज़र आ रहा था। अभी उसे चेयर पर बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि वो सब चले आए। हमें खुशी है सर कि आपने दोबारा अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रस्मी सलाम, दुआ और इजहार ताज़ियत के बाद तनवीर ने कहा। बाकी सब ने भी अपने अपने रिमार्क्स दिए, लेकिन वो थी कि जिसकी तरफ उसकी मुंतजर निगाहें न चाहते हुए भी बार बार उठ रही थी, लेकिन वो लब सिए बैठी थी। तानिया ने सबकी नज़र बचाकर उसे टहुका भी दिया, लेकिन वो फिर भी चुप रही। थोड़ी देर की गुफ्तगू और चाय पीने के बाद सब बारी बारी जाने लगे। वो भी साथ ही उठने लगी तो तानिया ने उसके साने पर दबाव डालकर उसे बैठे रहने का इशारा किया, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई। क्या चने चबा रही थी तो जो कुछ बक नहीं सकी। सीट पर आते ही तानिया उस पर बरस पड़ी, लेकिन वो एक नज़र उस पर डालकर फाइल को खोलने लगी। वीना, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर तुम अपने मुंह से कुछ फूट पड़ती तो क्या तुम्हारी शान में कोई फ़र्क आ जाता। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। क्या कहती हैं? वो बिल्कुल नासमझी के से अंदाज में बोली तो उसने अपना सर पीट लिया। इतनी बच्ची नहीं हो तुम। उससे बेहतर था तुम जाती ही नहीं अंदर। क्यों अपने रास्ते में खाद बिछा रही हो तनवीना हैदर? तुम अगर थोड़ा सा अपने खोल से बाहर आ जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी की राहों में फूल ही फूल होंगे। क्यों अपनी दुश्मन बनी हुई हो? प्लीज़ तानिया, फिजूल बातें मत करो। फिजूल? वो एकदम भड़क उठी। ये फिजूल है। देखा नहीं था वो बार बार तुम्हारी तरफ देख रहे थे, मुंतजर थे कि तुम कुछ भी कहो। ठीक है तानिया, मैं तुम्हारी बातों को नहीं झुटलाती, लेकिन जो तुम समझती हो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी की हकीकतें बहुत तल्ख हैं और मैं किसी भी उम्मीद का दामन नहीं थामना चाहती। कैसी हकीकतें? जब इन हक़ाइक़ से पर्दा उठा तुम खुद जान ही लोगी। बिना बात दरअसल ये है कि तुमने मुझे कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। वो अफसरदगी से बोली। शायद तो खुद भी अंदर से रेज़ा रेज़ा हो चुकी थी। कोई हमदर्द व गमगसार चाहती थी, इसलिए जब बोलने पर आई तो बोलती चली गई। अपनी ज़िंदगी के नसीब व फराज की एक एक दास्तान उसे कह सुनाई और वो साकत सुनती ही चली गई। तनवीना हैदर, तुम वाकई बहुत बहादुर, बहुत मजबूत हो। वो खामोश हुई तो वो कहे बिना न रह सकी।
اب تم بتاؤ تانی کہ ایسے حالات میں کسی آس کسی امید کا جگنو اپنی مٹھی میں دبا سکتی ہوں؟ پھر بھی وینا میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گی، وہ خلوص دل سے بولی۔ انشاءاللہ تمہارے راستے میں محبتوں کے پھول ضرور کھلیں گے۔ وہ آفس تو آنے لگا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی تھی، اور اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے نہ ہی ان لوگوں نے اسے ڈسٹرب کیا تھا، ان کے لیے اس کا آ جانا ہی کافی تھا۔ لیکن آخر کب تک؟ ایک دن تنوینہ کا حوصلہ جواب دے گیا تو وہ بول ہی اٹھی، تانیہ، اس فائل پر ارسل صاحب کے سائن بہت ضروری ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ اس کے سامنے تو تم چپ کا روزہ رکھ لیتی ہو، جاؤ جا کر دکھاؤ اسے۔ میں تو ہال میں ورکرز کو چیک کرنے جا رہی ہوں۔ میں نہیں جا رہی، تم لے جاؤ، میں ادھر جاتی ہوں۔ تمہارا کام تم خود ہی کرو، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی تو وہ بھی مجبوراً اٹھی۔ وہ اپنی ریوالونگ چیئر کی پشت پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اور نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کس قدر کمزور ہو گیا تھا وہ، مرجھایا ہوا چہرہ، عام سا گھریلو لباس، مڑے ہوئے آستین، حالانکہ وہ ہمیشہ ڈریس اپ ہو کر آفس آتا تھا۔ اچھا لباس اس کی خوبصورت شخصیت کو چار چاند لگا دیتا تھا، لیکن اب وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ اس کی اندرونی کیفیت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ شاید تنہائی سے فائدہ اٹھا کر خود کو کھوج رہا تھا، اور پھر جب اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں اور وہ عین اس کی نظروں کی زد میں آ گئی تو وہ دھیرے سے پلکیں جھکا گئی۔ وہ چند لمحے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھے گیا، اور وہ پلکیں جھکائے ٹیبل کی سطح پر رکھے شیشے پر اپنی نرم انگلی پھیرتی رہی۔ آپ نے اتنی زحمت کیوں کی مس تنوینہ حیدر یہاں تشریف لانے کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، میں خود حاضر ہو جاتا آپ کی خدمت میں۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ کچھ نہ بولی تو وہ خود ہی گویا ہوا۔ لہجہ نارمل، لیکن جملہ طنز آمیز تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، جسے وہ جھپک جھپک کر پیچھے دھکیلنے لگی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ غرا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ سر یہ فائل، اس نے کہا تو وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن تاب نہ لا سکی اور پلکوں کی چلمن گرا دی۔ سر یہ فائل بہت اہم ہے، اسے دیکھ لیں۔ اس نے فائل ٹیبل پر رکھ کر اس کے آگے سرکا دی۔ کوئی بھی چیز انسان سے زیادہ اہم نہیں ہوتی مس تنوینہ، وہ فنکارا۔ آپ کے نزدیک تو کسی انسان کی زندگی اور موت اہمیت نہیں رکھتی، یہ تو پھر ایک بے جان فائل ہے۔ اس نے وہی فائل اٹھا کر اس کے سامنے پھینک دی۔ کس کے لیے کون اور کتنی اہمیت رکھتا ہے، اس کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت خونی رشتوں کی ہے، اور آپ کے پاس یہ اہمیت موجود تھی، جبکہ میرے پاس اس اہمیت کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ رہی بات خلوص کی، تو محض دکھاوے سے کسی کا خلوص واضح نہیں ہو سکتا۔ یو شٹ اپ۔ وہ اس کے اس طرح اعتماد سے لیکن دھیرے دھیرے بولنے پر بھڑک اٹھا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، وہ دہاڑا، لیکن وہ کھڑی رہی۔ تنوینہ پلیز چلی جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو جاؤ، وہ بے بسی سے چیخا۔ تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ اپنی سیٹ تک پہنچتے پہنچتے وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اس لیے چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کاش کہ ارسل منصور تم جان سکتے کہ میں نے اس دوہرے غم کو کس طرح سہا ہے، کس طرح اس دکھ کا مقابلہ کیا ہے۔ اس نے بڑے کرب سے سوچا، اور بہت سے آنسو دائیں بائیں بہہ گئے۔ وینا، تانی کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول دی۔
تو وہ اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وینا، آخر تم اسے بتا کیوں نہیں دیتی؟ اچھا، تنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر دم توڑ گئی۔ تاکہ وہ مزید مجھ سے بدظن ہو جائے؟ نہیں تانیہ، مجھ میں مزید ذلت سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم سوچ رہی ہو ایسا نہ ہو۔ نہیں تانی، مجھے بھیک اور خیرات نہیں چاہیے۔ کب تک ماضی اور فیوچر کے درمیان لٹکتی رہو گی؟ جب تک میرے خدا کو منظور ہوا۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا اور سامنے پڑی فائل کھولی، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ مجید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ زندگی ایک دم ہی بے کیف ہو گئی تھی۔ وہ ایک چلتی پھرتی کام کرنے والی مشین بن کر رہ گئی تھی، جس کا مقصد کام کام اور صرف کام رہ گیا تھا۔ لیکن اب وہ تھکنے لگی تھی، کسی سایہ دار شجر کے نیچے آرام کرنا چاہتی تھی۔ آفس کا سارا بوجھ ابھی تک اس کے کندھوں پر تھا، جو کہ اب اس کے لیے اٹھانا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ فائل بہت اہم تھی جس پر وہ بڑی دیر سے سر کھپا رہی تھی، اور لمحہ بہ لمحہ اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایک عزم کے ساتھ فائل اٹھائے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اعتماد سے قدم جماتی وہ اس کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی تو اس نے بڑے کڑے تیوروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، اس نے کھا جانے والی انداز میں پوچھا تو وہ ٹیبل کے سائڈ سے ہوتی ہوئی اس کی دائیں طرف آن کھڑی ہوئی۔ سر، یہ فائل دیکھ لیں۔ اس نے فائل کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ اس نے فائل کو بند کر کے اس کے سامنے پٹک دیا۔ آئی ایم سوری سر، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ اب میں مجید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ آج آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا، مجھے کچھ نہیں سننا، چلی جاؤ یہاں سے۔ ٹھیک ہے سر، میں چلی جاؤں گی، لیکن آپ کی ذمہ داریاں آپ کو سونپ کر ہم برسوں کی محنت کو دنوں میں ختم نہیں کر سکتے۔ اس نے دوبارہ فائل اس کے سامنے کھول دی۔ آخر تم لوگ تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ سر، آپ اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت جلد چلی جاؤں گی، اسی لیے میں آج یہ سب کچھ آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیسے اس کے جانے کی بات سن کر سلگ اٹھا۔ پھر آپ بھی خاموشی سے میری بات سنیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کچھ بولتا، اس نے اپنی بات شروع کر دی، جو کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے پر مجبور تھا۔ وہ ایسے مسائل اس کے سامنے لا رہی تھی کہ ان سے نظریں نہیں چرا سکتا تھا، اور پھر وہ کافی دیر ان مسائل پر ڈسکس کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد باقی اسٹاف کو بھی طلب کر لیا گیا، اور یہ موجودہ حالات میں ایک بے حد اہم میٹنگ تھی۔ تنوینہ نے آج ایک بہت بڑا پہاڑ سر کر لیا تھا۔ وہ روزانہ آتا تھا تو آنکھیں بند کر کے نہیں آتا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سب لوگوں نے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں بانٹ رکھی تھیں، اور کتنی خوش اسلوبی سے ہر کام انجام دیا جا رہا تھا۔ کمپنی کے لیے اس کی بھاگ دوڑ بھی اس کے سامنے تھی، اور کچھ رحمت کی زبانی بھی گزشتہ حالات کی تفصیل وہ سن چکا تھا کہ کس طرح انہوں نے اس کی خاطر قربانیاں دی تھیں، جن میں سر فہرست تذکرہ تنوینہ کا ہی تھا۔ اور ان سب باتوں کے بعد اس کی بدگمانی کی گچھ گرد دھل گئی تھی۔ بدگمانی کچھ حد تک دھل گئی تھی۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، بلکہ آپ کے خلوص کے سامنے یہ لفظ بالکل بے معنی ہے۔ جس طرح آپ نے اس مشکل وقت میں مجھے اور میرے بزنس کو سہارا دیا ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، یا شاید کہیں نہیں ملتی۔ نو سر، ایسا نہ کہیں، اور اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو مس تنوینہ کا کیجیے، کیونکہ اگر یہ قدم نہ بڑھاتی تو یقیناً ہم بہت پیچھے رہ جاتے۔ تنویر نے کہا، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ سب کی مدد ساتھ نہ ہوتی تو میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے خود کو موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر دامن بچایا۔ بہرحال آپ سب اس کمپنی کے لیے ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔
सर मेरा ख्याल है कि अब हम में मुजीद लोगों का इजाफ़ा करना चाहिए क्योंकि काम ज़्यादा है और वर्कर्स कम। ये मशवरा था। ठीक है, अपने जैसे बासलाहियत और पुरखलूस लोग तलाश करें। सर हॉल कमरे के वर्कर्स में कुछ बासलाहियत लड़के और लड़कियां हैं मेरी नज़र में, तानिया ने कहा और फिर उनके नाम पेश कर दिए। तो ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं। और हाँ तनवीर और सरमत, अब आपको फैक्ट्री का बाकायदा इंचार्ज बनना पड़ेगा। लेकिन सर हमारा मशवरा तो ये है कि वहाँ का चार्ज आप संभालें और यहाँ की जिम्मेदारी मिस तनवीना के सुपुर्द कर दें। तनवीर ने कहा तो वो फ़ौरन बोली, नहीं अब मैं ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। उसके कहने पर उसने उसकी तरफ सिर्फ देखा ही था। बहरहाल देखते हैं क्या होता है, उसने बात ख़त्म की। मीटिंग के एंडिंग पर सब उठने लगे तो वो सबसे पहले उठ खड़ी हुई। आप अभी कुछ देर रुकेंगी मिस तनवीना? उसके कहने पर वो मुतज़्ज़ब सी दोबारा बैठ गई और बाकी सब बारी बारी निकल गए। हाँ अब बोलो, तुम कहाँ जा रही हो? रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे बैठे उसकी तरफ रोक मोड़ कर उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए उसने पूछा। जहाँ भी जाऊँ आपकी बला से, उसने दूसरी तरफ देखते हुए इंतहाई बेनियाजी से जवाब दिया। मेरे सामने ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर अपनी सीट संभालो, उसने खोखले से रौब के साथ कहा तो उसके अंदाज पर उसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई, जिसे छुपाने के लिए वो जल्द ही उठ गई। अपनी सीट पर बैठते हुए उसने गहरी और पुरसुकून सांस ली। आज उसके कंधों से बहुत बड़ा बोझ हट गया, लेकिन इन दोनों की अना के बुत आज भी अपनी अपनी जगह बड़ी आन बान से खड़े थे। उसके होठों पर खेलती गहरी और मुतमईन मुस्कुराहट तानिया की तेज़ नज़रों से छुपी न रह सकी। सच सच बताना वीना, आज क्या पढ़कर फूंका था अरसर मंसूर पर? गुज़श्ता और आने वाले मसाइल का दम, उसने बरजस्ता जवाब दिया। तानी इंसान चाहे जो मर्जी कहता रहे, लेकिन जीते जी वो अपने हक से दस्तबरदार हो सकता है और अपने कारोबार से नज़रें नहीं चुरा सकता। तुम्हें भी इन मेहनतों का कुछ सिला मिला या नहीं? उसने माने खेज मुस्कुराहट के साथ पूछा। शट अप, तुम सबसे अलहदा मेहनत नहीं की मैंने, उसने कहा, लेकिन उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट चुगली खा रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ ज़रूर है। सर ये हमारी शादी का कार्ड है और आप आंटी को साथ लेकर ज़रूर आइएगा। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो तनवीर कि तुम अपने मन चाहे साथी के साथ अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू कर रहे हो, उसने कार्ड पढ़कर दोबारा लिफाफे में डालते हुए कहा। थैंक यू सर, और मेरी दुआ है सर कि आपकी तन्हाइयों का साथी भी आपका मनचाहा मिले। उसने पुरखुलूस दुआ दी तो इस्तेहजाइया से अंदाज में मुस्कुरा दिया। कभी कभी मन की चाहतें बड़ी अजीब होती हैं तनवीर, कि जभी जिन्हें जहन कबूल नहीं करता। चाहतें तो बहता धारा है सर, चाहे जितने मर्जी बांध लो, ये काबू में नहीं आते। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो, वो गहरी सांस लेकर बड़बड़ाया। वीना की बच्ची, अगर तुमने तमाम फंक्शंस अटेंड ना किए तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई ना होगा। लेकिन तानी, रात के तमाम फंक्शंस में किस तरह अटेंड कर सकती हूँ? खुद तो तुमने 2 महीने की छुट्टियाँ ले ली, तो मैं रात भर जाग कर फिर यहाँ आकर ड्यूटी कैसे करूँगी? ऐसा करो, तुम भी 1 हफ्ते की छुट्टियाँ ले लो। हाँ, जैसे मेरी ही तो अजहदारी है यहाँ पर। मुझे नहीं मालूम, तुम्हें हर मुमकिन शादी में शिरकत करना है, लेकिन कुछ हुआ यूँ कि अचानक ही अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई और 2 दिनों में ही हालात इतनी ख़राब हुई कि उन्हें अस्पताल एडमिट करवाना पड़ा। जैन के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे थे, इसलिए सारा दिन तो नाइमा अम्मा के पास होती और रात को वो वहाँ ड्यूटी देती। अम्मा की ज़िंदगी उसे बेहद अजीज़ थी, इसलिए वो उन्हें शहर के बेहतरीन अस्पताल में लाई थी,
जहां उनका इलाज बड़ी तवज्जो से हो रहा था। तकरीबन 1 हफ्ता अस्पताल रहने के बाद वो घर आईं तो पहले से काफ़ी बेहतर थीं। शादी के बाद तानिया और तनवीर दोनों ही उनकी इयादत के लिए आए थे। तानिया और तनवीर की छुट्टियों की वजह से एक दफ़ा फिर जिम्मेदारियों का बोझ उस पर आ पड़ा था, लेकिन इतना नहीं कि वो बदहवास हो जाती। स्टाफ में इजाफे की वजह से काम का बोझ कुछ कम हो गया था। अलबत्ता अरसल के साथ उसे बहुत सी अहम मीटिंग्स में शरीक होना पड़ता था, और इस रोज़ भी वो किसी मीटिंग से वापस आ रहे थे। होंठों पर होंठ जमाए वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और वो भी खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठी गुजरते मंजर को देख रही थी कि गाड़ी की रफ्तार एकदम तेज़ हो गई। तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर फैला इज़्तिराब उसके अंदर की कैफियत को वाज़ेह कर रहा था। गाड़ी की रफ्तार मुझी तेज़ हो गई थी। वो खौफजदा सी निगाहों से सड़कों पर फैले रश को देखने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? स्पीड इंतहाई हुदूद पर पहुंच गई तो वो चीख उठी, लेकिन वो लब भींजे बैठा रहा। आज बहुत अरसे बाद ये इज़्तिराब उस पर हमला आवर हुआ था। उसकी ये कैफियत बहुत दिनों बाद देखी थी उसने। वो गाड़ी को कदरे सुनसान सड़क पर ले आया था। वो उसकी लम्हा ब लम्हा बदलती हालत को देख रही थी। वो गाड़ी को अपने अंदर उठते तूफ़ान की तरह ही ड्राइव कर रहा था। कभी स्पीड तेज़ हो जाती और कभी इतनी आहिस्ता कि ऐसा लगता अभी गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन फिर जैसे उस पर जुनून तारी हो गया। वो लाख कोशिश के बावजूद भी खुद को कंट्रोल कर नहीं सका था। अरसल साहब, प्लीज़, क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाई। क्यों, बहुत डर लग रहा है? उसने तंजिया अंदाज में कहा। प्लीज़ रफ्तार आहिस्ता करें। क्यों? मुझे आपके साथ मरने का कोई शौक़ नहीं है, वो तेज़ लहजे में बोली तो फुल स्पीड गाड़ी को एकदम ही ब्रेक लग गई। एहतिजाजन गाड़ी के टायर भी पूरी कुव्वत से चिल्लाए, उतरो नीचे। क्यों? वो हैरत से आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगी। उतरो। उसके लहजे में एक ऐसी कड़क थी कि वो मशीनी अंदाज में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई, और अगले ही लम्हे वो गाड़ी उड़ा कर ले गया। और वो गुस्से की हालत में लब भींजे उड़ती धूल को देखती रह गई। एसी गाड़ी से बाहर आते ही उसे शदीद गर्मी का एहसास हुआ। झिलमिलाती धूप से बचने के लिए वो रोड से कदरे हटकर खड़े दरख्त की तरफ बढ़ गई। उसकी नज़रें सुनसान सड़क का दूर तक जायजा ले रही थीं। उसे वहाँ खड़े तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे कि वो पसीने से बुरी तरह भीग गई थी। उसे रह रहकर अरसल मंसूर पर गुस्सा आ रहा था। कब तक, आखिर कब तक लड़ोगे खुद से अरसल मंसूर? आखिर एक दिन तो ऐसा आएगा कि दूर से आते रिक्शे को रोक कर उसमें बैठ गई और घर का एड्रेस समझा दिया। इस वक्त वो ऑफिस नहीं जाना चाहती थी। उठी गिरती पलकों को वो इतनी देर से अपनी नज़रों के हिसार में लिए बैठा था। वो काफ़ी देर से उसे डिक्टेशन देने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हालांकि ये काम अब उसके स्टैंडर्ड का नहीं था, लेकिन फिर भी वो उससे करवाता था। लेकिन वो उसे आज फिर कुछ हो गया था। कभी चेयर पर बैठ जाता तो थोड़ी देर बाद उठकर खड़ा हो जाता। बोलते बोलते भूल जाता कि क्या कह रहा था, सो चुप हो जाता। उसे यहाँ बैठे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक एक लफ्ज़ भी पल्ले न पड़ा था कि क्या लिखे। इसलिए वो नज़रें झुकाए खामोश बैठी डायरी पर उल्टी सीधी लाइनें खींच रही थी। जब वो खुद भी इधर से उधर टहलते टहलते थक गया तो अपनी चेयर पर ढेर आ गया। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही वो गुंग हो गया था, और अब उसकी तेज़ निगाहों की तपिश उसे झुलसाए दे रही थी। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो भागकर जहाँ भी चली जाती वजूद में गढ़ती ये 2 निगाहें उसका पीछा नहीं छोड़ सकती थी। लिहाजा वो बैठी रही कि शायद आज खुद परस्ती का खोल कहीं से चटक जाए। लेकिन इंतज़ार के लम्हे तवेल हो गए तो एक झटके से उठ खड़ी हुई। अब इन नज़रों को बर्दाश्त करना उसके बस की बात नहीं थी। डायरी और पेन टेबल पर रखा और मुड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाती बाहर निकल गई।
वो उसके इस तरह उठने पर चौंक गया और उसके कमरे से निकलते ही गहरी सांस लेकर पेन और डायरी अपनी जानिब खिसका ली और पहले ही सफ़े पर लिखी तहरीर को पढ़कर लब भींचकर ज़बरदस्ती दर आने वाली मुस्कुराहट को रोका। वरक फाड़ कर टेबल की दराज में रखा और बेल बजाकर रहमत को बुलाया। तनवीर साहब को भेजो। फाइलों को इधर उधर पटकते वो मुसलसल बलबला रही थी। समझता क्या है अपने आप को? क्या मैं इतनी ही गिरी पड़ी हूँ? तुफ है तुम पर भी तनवीना हैदर, जो तुम इतनी देर वहाँ बैठी रही। कहाँ गई तुम्हारी वो अना, वो खुददारी? क्यों भस्म हो जाती हो उसके सामने? क्यों मुंतज़िर हो इस बात की जो नामुमकिन है? तमाम हक़ाइक़ से बाखबर होने के बावजूद क्यों आग में छलांग लगा रही हो? वीना यार, अंदर का गुस्सा क्यों इन बेचारी बेजान फाइलों पर निकाल रही हो? ये तानिया थी, अभी 2 दिन पहले ही लौटी थी हनीमून ट्रिप से। उसकी शरारत आमेज़ लहजे पर वो उसकी तरफ देखने लगी। वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई थी। कितने खूबसूरत होते हैं इन खुशियों के रंग, वो सोच कर रह गई। तनवीर साहब, आपको साहब बुला रहे हैं। तनवीर जो कि वहीं बैठा था, रहमत ने आकर पैगाम दिया तो वो कुछ याद आने पर एकदम चौंक कर खड़ी हो गई। इतने में तनवीर भी जाने के लिए खड़ा हो चुका था। 1 मिनट तनवीर, ठहरो, मैं अभी आई, वो ये कहकर तेज़ी से निकल गई। उसकी टेबल के करीब पहुंचकर उसने देखा डायरी और पेन वो जिस तरह छोड़ गई थी वैसे ही रखे थे, लेकिन ऊपर का वर्क जिस पर वो लिखती रही थी गायब था। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उल्टे कदमों लौटने लगी। सुनो, उसकी आवाज़ पर उसके कदम वहीं जम गए। वो मुड़ी नहीं। यही लेने आई थी ना तुम? उसने डायरी का वो कागज़ उसके आंखों के सामने रख दिया तो वो अपने ही लिखे जुमलों पर उसकी नज़रें फिसल गई। लगता है आज फिर उनका ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया है। उन्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। आंखें तो जैसे पथरा गई हैं, उन्हें किसी आई स्पेशलिस्ट से रुजू करना चाहिए। उसने एक नज़र में सारा पढ़ लिया और फिर उससे नज़र मिलाए बगैर उसकी साइड से होती बाहर निकल गई। हिमाकत तो हो चुकी थी। पर्ल कॉन्टिनेंटल में फॉरेनर्स की एक बहुत अहम मीटिंग है जिसे हमारे मुल्क के मायानाज ताजिर राजा एंड सन्स ने अरेंज किया है। चूँकि इनविटेशन कार्ड हमें भी मौसूल हुआ है और कंपनी को तरक्की देने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन मौका है, और मुझे आप में से एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो वहाँ पूरी तरह तर्जुमानी कर सके। अब वो कौन हो, आप राय दें। अरसल अपने स्टाफ के सामने बैठा पूछ रहा था। आपके लिए बेहतरीन साथी तो मिस तनवीना ही हो सकती हैं। तनवीर ने जुमला तो बड़े नॉर्मल लहजे में अदा किया था, लेकिन उसकी बात से झलकती माने खेजी पर अरसल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों सर, मैंने कुछ गलत कहा? वो अब भी संजीदा था। कहकर उसकी नज़र तनवीना की तरफ उठ गई। आई एम सॉरी सर, मैं इतनी रात गए किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करती, वो भी कम न थी। आप तानिया और तनवीर में से किसी को ले जाएं, उसने जवाब देकर साथ ही मशवरा दिया, लेकिन उसे उसका ये दो टोक अंदाज पसंद न आया। सॉरी मिस तनवीना, दिन हो या रात हो, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। ज़हनी तौर पर खुद को तैयार कर लें कि आपको मेरे साथ चलना है। उसका अंदाज भी फैसला कुन था। वो हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी और फिर बाकी सबके साथ लब काटती खड़ी हो गई। बाहर निकलकर वो तानिया से उलझ पड़ी। तानी, तुम समझने की कोशिश करो, इतनी रात गए मैं अकेली। शट अप यार, क्यों बुज़दिलों जैसी बातें कर रही हो? और क्या पहली दफ़ा जा रही हो इसके साथ जो तुम फिजूल के वहमों में घिरी हो? पहली दफ़ा नहीं जा रही, इसीलिए तो कह रही हूँ। फिर ये दोपहर में अगर सुनसान राहों में छोड़ कर आ सकता है तो आधी रात के बाद क्या बईद है इससे? वो तानिया को उस दिन का वाक़या बता चुकी थी। इस वहम को दिल से निकाल दो कि वो तुम्हें छोड़ सकता है, और अगर छोड़ भी जाए तो ये यकीन रखो कि लौट कर तुम्हारे तरफ ही आएगा।
वक्त बेवक्त फिजूल बकवास ना करती रहा करो तुम। ठीक है नहीं करती, लेकिन तुम फंक्शन में जाने का तैयारी कर लो। और शाम को वो ना चाहते हुए भी जाने के लिए तैयार हुई। नाइमा ने तैयारी में उसकी भरपूर मदद की। ब्लैक सूट पर लगे मल्टी सेट्स रंगों से मैच ज्वेलरी वो ले आई थी। आपा ये भी पहन लें। नैमी मैं मीटिंग में जा रही हूँ, शादी में नहीं। आपा छोटे छोटे से तो टॉप्स हैं, और ये रंग तो आपके नाजुक सी उंगली में बहुत सजेगी। उसने अंगूठी उसकी उंगली में डालते हुए कहा, और उसका कहना सच साबित हुआ था। और फिर उसने चुपके से उसके पीछे खड़े होकर छोटे छोटे मोतियों वाली ब्लैक मल्टी सेट्स बारीक सी माला उसके गले में डाल दी, जो कि उसकी सुराहीदार सफ़ेद गर्दन पर दमक उठी थी। अरे ये क्या, देखें आपा कितनी सूट कर रही है। और फिर खूबसूरत गुलाबी होठों पर ब्राउन लिपस्टिक और आई लाइनर्स के बाद काजल की लकीर ने उसकी जादुई आँखों को मुजीर निखार दिया था। आज बहुत अरसे बाद वो इतने एहतमाम से तैयार हुई थी। आईने में एक लम्हे को तो वो खुद को भी नहीं पहचान पाई। आपा बाल खुले रहने दें। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने सख्ती से कहा, और लंबे बालों की आधी चुटिया बनाकर ब्लैक मोतियों की पोनी डाल ली, और लिबास से हमरंग नाजुक से सैंडल पहनकर वो बिल्कुल तैयार थी। वो अपना तकनीदी जायज़ा लेकर रस्ट वॉच पर टाइम देखी कमरे से बाहर आ गई। माशाअल्लाह, मेरी बच्ची को नज़र न लग जाए, अम्मा ने ममता से भरपूर लहजे में कहा, और कुछ पढ़कर